Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today our topic is structure of bacteria and we are going to discuss it with the help of diagram. Each and everything of bacteria is present in this diagram hopefully. So we have to start it right now. So सबसे पहले जो है अगर हम बात करें so outer covering, okay? तो जो outermost covering होगा जिसको cell envelope भी बोला जाता है and this cell envelope or outer covering called as mucilage, okay? And this mucilage also called as glycocalyx, and this glycocalyx is loose and it is tough as well, okay? If this mucilage or glycocalyx is loose, it is called as slime layer, and if it is tough, it is called as capsule, okay? So sometimes it is called as slime layer, sometimes it is called as capsule. It depends on the nature. If this mucilage, this layer outer covering is loose, it is called as slime layer, and if it is tough, it is called as capsule. Okay. And what about the composition? So this mucilage consists of non-cellulosic polysaccharides. Okay. And what is the function of this mucilage layer? The function is protection and resistance. Then beneath this layer, okay, beneath this mucilage, this layer called as cell wall. It is called as cell wall, and this cell wall is again rigid, okay, and it is made up of peptidoglycan, which is further made up of NAG and NAM. One is N-acetyl glucosamine and other is N-acetyl uramic acid. And this cell wall provide shape, protection and support to the bacteria. So beneath the cell wall there is another layer called as plasma membrane, okay? And this plasma membrane is basically made up of phospholipids and some proteins. And this plasma membrane is inner to the cell wall, okay? And this plasma membrane has some enzymes. These are the enzymes, these structures which are just present in the plasma membrane, and these are the enzymes. These enzymes called as respiratory enzymes, okay? These enzymes called as respiratory enzymes, so they help in the respiration, okay? After that, this cell layer, plasma membrane, bear or contain an inward growth, and this inward growth called as mesosome. This inward growth called as mesosome. So plasma membrane पे respiratory enzymes भी होंगी जो respiration करेगी, and इस पे एक और structure रहता है plasma membrane पे जो plasma membrane की infolding से जो है form होता है. तो plasma membrane जब infolding करता है, and that infolding structure called as mesosome. That infolding structure called as mesosome, okay? और क्या है फंक्शन मीजोसोम का, बनता कैसे है? इट इज मेड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, और इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अंदर के लिए जो है यहाँ पे ग्रो करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मीजोसोम फॉर्म करेगी एक फोल्ड की फॉर्म में. एंड दिस मीजोसोम, इसका अगर हम फंक्शन जो है बताएं तो फंक्शन इसका क्या है, क्योंकि ये सेप्टा वगैरह से बना होता है, लैमेली और सेप्टा इसे कंपोनेंट्स है, और अगर ये सेप्टा से बना है तो दिस मीजोसोम हेल्प इन द सेल डिवीजन, ओके? ये सेल डिवीजन में और एप्लीकेशन में जो है टेक पार्ट करता है. तो यह आ गई आपकी 3 लेयर्स. सबसे पहले हमने बताया कि म्यूसिलेज रहता है, फिर देन नेक्स्ट इसके बीनीथ सेल वॉल, और इसके बीनीथ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ जो है एंजाइम्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और इसी के साथ जो है कुछ इनग्रोथ भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दैट इनग्रोथ कॉल्ड एज मेसोसोम्स, ओके? यहाँ तक क्लियर है. नीट के एग्जाम में या पीएमटी के एग्जामिनेशन में आपका जो है मेसोसोम पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको जो है इनफोल्डिंग या इनग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और इसका फंक्शन रहता है सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन, ओके? अब जितना भी अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मैटर है, ओके, सब का सब मैटर जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ओके? होली सोली इट इज साइटोप्लाज्म, जेली सबस्टांस है, और इसी साइटोप्लाज्म में जो है जितना भी पार्ट है बैक्टीरिया का सारा जो है इसी में
कंटेन रहेगा। ओके, चाहे हम न्यूक्लियोलाइड की बात करें, पॉलीराइबोसोम्स की बात करें, या गैस वैक्यूल्स की बात करें, हम लिपिड ग्लोब्यूल्स की बात करें, ईच एंड एवरीथिंग इज लोडेड इन द साइटोप्लाज्म। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, दैट्स वाई जो भी कुछ इनसाइड होगा सारा का सारा साइटोप्लाज्म में ही जो है रहेगा। ओके, सो साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, ये आपका जो सिंगल यूनिट है इट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। और राइबोसोम जो होते हैं ना बैक्टीरिया में, दे आर 70S। ओके, तो S मीन्स सेडिमेंटरी कोफिशिएंट। ओके, और अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो वहां पे राइबोसोम्स आपके जो 80S हो जाते हैं। तो ये मैंने जो लॉन्ग एक चेन बनाई है राइबोसोम्स की, इट इज कॉल्ड एज पोलेराइबोसोम्स। मैंने यहाँ से लेबल भी किया है, इट इज कॉल्ड एज पोलेराइबोसोम्स। ओके, और इन्हीं पे जो है प्रोटीन की जो है सिंथेसिस होगी। और फिर जो है आपका यहाँ पे जो ये मैंने है ना डॉटेड जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इट इज कॉल्ड एज लिपिड ग्लोब्यूल। ओके, ये कुछ जो है फूड वगैरह जो है स्टोर रखेगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे स्टार लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपका जो है ना पॉलीगन टाइप का, तो ये आपका जो है ग्लाइकोजन है। ओके, ये भी आपका रिजर्व फूड है। और उसके बाद जो है गैस वैक्यूल्स, ये जो यहाँ से जो है मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये आपका गैस वैक्यूल, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज गैस वैक्यूल्स। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गैस वैक्यूल का जो फंक्शन है, दे प्रोटेक्ट। बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सैक वैक्यूल्स नहीं होंगे, यहाँ पे गैस वैक्यूल्स होते हैं। एंड दीज गैस वैक्यूल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन और रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया अगेंस्ट द हार्मफुल रेडिएशंस। ओके, और फिर जो है अगर हम सेंटर में आ जाते हैं, तो ये आपका न्यूक्लियोलाइड है। ओके, जिसको हम डीएनए कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज डीएनए। और मैंने बताया था कि जो डीएनए रहता है बैक्टीरिया में, इट इज सर्कुलर। ओके, इट इज नैप्ड एंड इट इज व्हाट सर्कुलर, नैप्ड एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और इसको जो है कहा जाता है न्यूक्लियोलाइड, या इसको कहा जाता है जीनोफोर। ओके, तो ये जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही जो है रहता है। ओके, डीएनए, या इसको हम न्यूक्लियोलाइड भी कहते हैं, या इसको हम जीनोफोर कहते हैं। तो ये इसका जो है जेनेटिक मटेरियल है, जो बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर हमने यहाँ पे शो किया है ये पूरा। इसके अलावा जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है क्रोमोसोमल सेगमेंट्स भी रहते हैं डीएनए के। तो ये आपका मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस, इनको हम प्लाज्मिड्स बोलेंगे। और प्लाज्मिड जो है ये न्यूक्लियोलाइड के बाहर का पार्ट है, न्यूक्लियोलाइड का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। तो कभी कभार ये प्लाज्मिड जो है, अगर ये आपका किसके साथ, अगर ये जो है मैन न्यूक्लियोलाइड के साथ जो है इसका कहीं अटैचमेंट रहता है, ओके, तो इस अटैचमेंट को जो है एपिसोम कहा जाता है, जहां पे आपका प्लाज्मिड और जो मैन जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोलाइड, अगर वो कहीं अटैच हो जाते हैं, एंड दैट पॉइंट कॉल्ड एज एपिसोम। ओके, तो प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, ठीक, ये न्यूक्लियोलाइड का बिल्कुल पार्ट नहीं है। और ये प्लाज्मिड में क्या रहता है, इसका जो फंक्शन है, ये कुछ निफ जीन कंटेन करता है। ओके, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स। ओके, निफ जीन्स इनमें जो है रहती है, प्लाज्मिड्स जो है कंटेन करेगा। निफ जीन्स के अलावा जो कुछ फर्टिलिटी फैक्टर्स होते हैं, निफ जीन्स, ओके, और इसके अलावा जो है फर्टिलिटी फैक्टर्स भी कंटेन करता है प्लाज्मिड। ओके, निफ जीन्स, फर्टिलिटी फैक्टर, और साथ ही साथ जो है ये कुछ रेजिस्टेंट फैक्टर भी जो है कंटेन करता है, रेजिस्टेंट फैक्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी बार आपके एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। प्लाज्मिड का फंक्शन, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, और ये कंटेन करता है निफ जीन्स, दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स। ओके, एंड फर्टिलिटी फैक्टर्स एज वेल एज रेजिस्टेंट फैक्टर्स। इनको जो है एफ फैक्टर्स भी कहा जाता है, और इनको आर फैक्टर्स भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे देखो, ये अब आउट ग्रोथ की बात करें तो ये आउट ग्रोथ सब जो है हम डिस्कस करेंगे। एक आउट ग्रोथ जो है ये वाली है, और एक आउट ग्रोथ जो है ये है। पहले हम ये वाली आउट ग्रोथ डिस्कस करेंगे। देखो, दिस आउट ग्रोथ, ये जो सेल से ही निकलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो पार्ट निकलता है, ये इसमें हुक। ओके, इस आउट ग्रोथ में सबसे बेसल पार्ट क्या होगा, बेसल बॉडी हुक कहलाएगी। और आगे जाके जो यहाँ पे जो है फोल्ड बन रहे हैं, देयर कॉल्ड एज फिलामेंट्स। और फिर फिलामेंट के आगे जो बिल्कुल बेस इसका जो है टॉप है, जिसका कॉल्ड एज फ्लैजिलम। तो ओवरऑल जो है ये फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर है। ओवरऑल क्या है, ये फ्लैजिलम है, ठीक। तो फ्लैजिलम में भी आपके जो है 3 पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहले बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी, ये मैंने थोड़ा इसको काफी जो है यहाँ पे डार्क किया है। बेसल बॉडी के बाद जो है इसका हुक रहता है, दिस इज कॉल्ड एज हुक।
और हुक के बाद जो है इसका फिलामेंट रहता है सामने। तो ये आपका जो है ओवरऑल क्या है, ये बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ओवरऑल स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम फ्लैजिलम। क्या बोलेंगे? फ्लैजिलम। तो अगर ये बैक्टीरिया का फ्लैजिलम प्रेजेंट है उसको ट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाएगा, और ये फ्लैजिलम से जो है ये मूव करेगा क्योंकि लोकोमोटरी ऑर्गन है। ओके, तो फ्लैजिलम इज लोकोमोटरी ऑर्गन बेसिकली, और ये प्रोटीन से बना होता है। दैट प्रोटीन इज फ्लैजिलिन। इट इज इंपॉर्टेंट, फ्लैजिलिन प्रोटीन से जो है बना होता है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर फ्लैजिलम कहलाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। जिन बैक्टीरिया में होता है उनको ट्राइकस कहेंगे, और जिनमें नहीं होता है उनको एट्राइकस कहेंगे। एट्राइकस में आपका बेस्ट एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, और ट्राइकस बैक्टीरिया जहां पे फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा उनमें आपका जो है कंडीशंस हैं। तो ट्राइकस बैक्टीरिया है बट उनमें मोनोट्राइकस, स्फेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, उसके बाद जो है नोफोट्राइकस एंड पैट्रीट्राइकस। उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था इन डिटेल डायग्राम्स। तो फ्लैजिलम अगर जो है प्रेजेंट है तो मोटाइल है बैक्टीरिया, अगर नहीं है तो नॉन मोटाइल। ओके, तो फ्लैजिलम जिनमें प्रेजेंट होता है उन बैक्टीरिया के एग्जांपल, इस तरह अगर मोनोट्राइकस है तो विब्रियो, ओके, स्फेलोट्राइकस है तो सिडोमोनास, पेट्रोलियम डेग्रेडिंग बैक्टीरिया, और अगर जो है एम्फीट्राइकस है तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और साथ ही साथ जो आपका लोफोट्राइकस है तो उसमें आपका स्पाइरलम एग्जांपल, और अगर वो पैट्रीट्राइकस है, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी जो है फ्लैजिलम कंटेन कर रहा है तो वो इकोलाई है। ठीक, तो इकोलाई, नाइट्रोसोमोनास और विब्रियो, सिडोमोनास और जो है इकोलाई, सैल्मोनेला, ये सब बैक्टीरिया कौन से हैं? दे आर ट्राइकस बैक्टीरिया। और एक और आउटग्रोथ रह जाती है हमारी यहाँ से, अब ये वाली आउटग्रोथ, इसको हम कहते हैं पिलस। सिंगुलर है तो पिलस, बहुत सारी है तो पिलाई। ठीक है, सिंगुलर को कहेंगे पिलस, और अगर इसका प्लूरल है तो क्या कहेंगे हम? प्लूरल को कहेंगे हम, यहाँ पे मेंशन करता हूं मैं, प्लूरल कॉल्ड एज पिल्लाई। ठीक है, पिलस जो है ये सिंगुलर है, पिलस इज सिंगुलर एंड प्लूरल इज पिलाई। और ये जो पिलाई या पिलस जो है, ये पिलस जो है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कभी कभार जो है एक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है आपका गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया, एक जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में, ह्यूमंस की यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है होता है, और वो यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ जो है इसी पिलस के साथ जो है अटैच रहता है। ओके, वो यूरिनरी जो है डिसऑर्डर्स या यूरिनरी जो है ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, और वो यूरिनरी ट्रैक्ट की मेम्ब्रेन के साथ जो है इसी पिलस के साथ जो है वो निसीरिया जो है गोनोरिया जो बैक्टीरिया है वो अटैच रहता है। तो ये पिलस जो है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, और इसी पिलस को जो है एक और नाम दिया जाता है, वो है आपका फिम्बरी। तो पिलस को ही जो है एक और नाम से लिखा जाता है, दैट इज फिम्बरी। ओके, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये था आपका जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर। ओके, और यहां से आपका एक एक्सेप्शनल केस है किंगडम मोनेरा का, वो है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सेल वॉल फॉर्म नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल। और जो माइकोप्लाज्मा है ना, वो उसको जो है पीपीएलओ भी कहा जाता है, दैट इज प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो कैटल्स में जो है निमोनिया काज करता है। ओके, और वो माइकोप्लाज्मा एक यूनिक केस है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ओके, और रेस्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा जो है सब में क्या रहता है? सेल वॉल रहता है। ओके, तो ये था आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इन जनरल हमने इसको जो है डिस्कस किया विद पार्ट्स और पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस tomorrow. So stay safe, stay healthy, stay tuned. Bye. Thanks for watching. और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। डोंट फॉरगेट। ओके, आपने प्रॉमिस किया है ना। ओके, बाय, टेक केयर।